ویلکم بیک اور بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بتائیں کہ سپریم کورٹ نے خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق ایک اہم فیصلہ جاری کرتے ہوئے 71 سال بعد دو بہنوں اور ان کی والدہ کو وراثتی جائیداد میں حصہ دینے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے اسلام آباد سے بیورو چیف بلال ڈار سے۔ بلال ڈار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دعا بالکل عدالت نے ہائی کورٹ، اپیلیٹ کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کا عدم قرار دیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ خواتین کو وراثت سے محروم رکھنا آئینی، غیر آئینی اور غیر اسلامی ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا جس میں کہا گیا کہ خواتین کی وراثتی حقوق کا تحفظ صرف ریاست کی ذمہ داری نہیں بلکہ سول سوسائٹی، علماء، ریونیو حکام اور قانونی ماہرین کا بھی ان حقوق سے انحراف روکنے کے لیے بھی پابند ہیں۔ فیصلے کے مطابق 1955 میں والد کے انتقال کے بعد دو بھائیوں نے وراثتی جائیداد اپنے نام منتقل کرا لی اور زبانی ہبہ کو بنیاد بنا کر والدہ اور بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ جعلی ہبہ، فراڈ یا خاندانی دباؤ کے ذریعے خواتین کی شرعی اور قانونی حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ٹرائل کورٹ نے بار ثبوت کا درست جائزہ لینے کے بجائے زبانی ہبہ کو ہی ثبوت تسلیم کر لیا، جبکہ اپیلیٹ کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے بھی حقائق اور قانون کے منافی تھے۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ اگرچہ زبانی ہبہ کو کئی دہائیوں بعد چیلنج کیا گیا تاہم اس سے ثابت کرنا ان افراد کی ذمہ داری ہے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ عدالت نے مزید کہا ہے کہ ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ کئی برس تک والدہ اور بہنوں کو زمین کی آمدن میں حصہ ملتا رہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں مبینہ ہبہ سے لا علم رکھا گیا۔ سپریم کورٹ نے زور دیا کہ خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ کو ہر مرحلے پر چوکس رہنا چاہیے۔ جی تفصیلات کے لیے شکریہ بلال۔ آگے بڑھیں اور بات کریں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ڈیرہ اسماعیل خان میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن SIUT کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ SIUT کا منصوبہ تقریباً 1 ارب روپے کی لاگت سے قائم کیا جائے گا اور یہ خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اہم تحفہ ہے۔ فیصل کریم کنڈی کا یہ کہنا تھا کہ سندھ میں محکمہ صحت کی سہولیات پورے ملک کے لیے ایک مثال ہیں اور اسی طرز پر ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی جدید طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ SIUT کے لیے زمین کے حصول کا عمل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا، جبکہ منصوبے کا باقاعدہ اعلان وزیر اعلیٰ سندھ اسمبلی میں کر چکے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے امید ظاہر کی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں SIUT کا جلد افتتاح کیا جائے گا، جس سے جنوبی خیبر پختونخوا کے مریضوں کو جدید اور معیاری علاج کی سہولت میسر آئے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی سے پشاور پریس کلب کے کابینہ اور گورننگ باڈی کے وفد نے ملاقات کی، جن میں صحافیوں کی فلاح و بہبود، پریس کلب کی نئی عمارت اور میڈیا سے متعلق ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پشاور پریس کلب کی نئی عمارت کا جلد سنگ بنیاد رکھنے اور پشاور کے صحافیوں کے لیے الگ فنڈ کے قیام سے اصولی اتفاق کیا۔ محمد سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت آزاد، ذمہ دارانہ اور خود مختار صحافت کے فروغ اور صحافیوں کو محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بجٹ 2026-2027 میں کارکن صحافیوں کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی کی مد میں 1 ارب روپے، میڈیا کالونیز کی فیسیبلٹی اور ڈیزائن کے لیے 50 کروڑ روپے، پشاور پریس کلب کی نئی عمارت کے لیے 15 کروڑ روپے، ضلعی پریس کلبوں کی بحالی کے لیے 30 کروڑ روپے اور انفارمیشن سیکٹر میں جدت کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید بتایا کہ خیبر پختونخوا جرنلسٹ ویلفیئر انڈورسمنٹ فنڈز کی مالیت 20 کروڑ روپے سے بڑھا کر 50 کروڑ روپے کر دی گئی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ میڈیا اداروں کو اشتہارات کے بقایا جات کی ادائیگی، کارکن صحافیوں کے واجبات اور کم از کم اجرت کی ادائیگی سے مشروط بنائی جائے۔ ملاقات میں نیو پشاور ویلی سٹی میڈیا انکلیو، صحافیوں کے مطالعاتی دوروں اور دیگر فلاحی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پشاور پریس کلب کے جنرل سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ کو پریس کلب کے دورے اور نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کی دعوت دی۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی اور UNODC کے اشتراک سے پائیدار امن کے قیام کے لیے زراعت میں سماجی کاروباری صلاحیتوں کا فروغ کے عنوان سے ٹریننگ آف ٹرینرز پروگرام اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ پروگرام کا مقصد اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ، سماجی کاروباری رجحانات کو فروغ دینا اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اورنگزیب خان کچھی نے کہا کہ اساتذہ کی تربیت اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور نئی نسل کو قومی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے میں
اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر نے جامعات کو تحقیق، جدت اور سماجی ترقی کے مراکز قرار دیتے ہوئے عالمی تحقیقی منصوبوں میں بھرپور شرکت پر زور دیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قمر الزمان نے شراکت دار اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اساتذہ کی مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔ تقریب کے دوران بارانی زرعی یونیورسٹی اور وزارت قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کے درمیان طویل المدتی ادارہ جاتی تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ انسداد منشیات فورس نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف ٹیک ڈاؤن کرتے ہوئے 5 کارروائیوں میں 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ کارروائیوں کے دوران 12 کروڑ 19 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئیں۔ اے این ایف نے لاہور، حیدرآباد، کراچی اور ضلع چاغی میں 5 مختلف کارروائیاں کی۔ لاہور کے ایبٹ روڈ پر ایک کورئر آفس سے زامبیا بھیجے جانے والے پارسل میں لیڈیز دوپٹے میں چھپائی گئی 332 گرام آئس برآمد ہوئی ہے۔ حیدرآباد کے قریب آسٹریلیا جانے والے پارسل میں جیکٹس میں جب 27.66 کلو گرام آئس برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ لاہور کی پاک عرب سوسائٹی میں ایک گھر سے 649 کلو گرام ٹراماڈول اور 3.2 کلو گرام ولیم گولیاں برآمد ہوئیں، جہاں ایک ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ضلع چاغی کے علاقے نوکنڈی سے 1485 کلو گرام چرس اور 623 لیٹر شراب بھی برآمد کی گئی، جبکہ کراچی کے پرانے گولی مار کے علاقے سے 2.3 کلو گرام ہیروئن قبضے میں لے لی گئی۔ اے این ایف نے تمام مقدمات انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ راولپنڈی کی تحصیل کلر سیدہ میں خطرناک انداز میں چنگچی رکشہ چلانے والے ڈرائیور کے خلاف پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق کلر سیدہ کے مرید چوک پل پر سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ایک ڈرائیور کو چنگچی رکشہ ہینڈل پر پاؤں رکھ کر انتہائی خطرناک انداز میں چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ٹریفک انچارج سجاد قریشی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور کے خلاف FIR درج کرا دی۔ اہل علاقہ نے پولیس کے بروقت اقدام کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آئندہ بھی بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ اور اب بات کریں گے تھانہ سٹی سمندری کے علاقے سے 11 سالہ عمیر علی کی گمشدگی پر۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اغوا کا مقدمہ درج کیا اور تلاش کا آغاز کر دیا۔ SHO تھانہ سٹی سمندری اقبال فرید نے ٹیکنیکل وسائل کی مدد سے بچے کو نئی سمندری سے بحفاظت بازیاب کر لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بچہ گھر والوں سے ناراض ہو کر اپنے رشتہ داروں کے گھر چلا گیا تھا۔ بچے کی بحفاظت واپسی پر اہل خانہ نے پولیس کی فوری کارروائی کو سراہتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ CPO فیصل آباد کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے فیصل آباد پولیس ہر وقت متحرک ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم نے ہیڈ توسا براج، عباس والا بند اور دریائے سندھ کے دیگر حفاظتی بندوں کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ محکمہ انہار کے حکام نے انہیں دریا کی صورتحال، فلڈ فائٹنگ انتظامات اور حفاظتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے حفاظتی بندوں کی مضبوطی، پانی کے بہاؤ، حساس مقامات، مشینری اور ضروری سامان کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے محکمہ انہار کو ہدایت کی کہ تمام حفاظتی بندوں کی 24 گھنٹے نگرانی یقینی بنائی جائے، حساس مقامات پر خصوصی توجہ دی جائے اور فلڈ فائٹنگ کے لیے درکار وسائل ہر وقت تیار رکھے جائیں۔ بلال سلیم نے مزید کہا کہ مونسون کے دوران تمام متعلقہ ادارے باہمی رابطے کے ساتھ کام کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر دم مکمل تیار رہیں۔ رخ کریں گے پاک پتن کا اور بتائیں کہ پاک پتن میں طویل دورانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سابق رکن اسمبلی واجد ڈوگر کی قیادت میں شہریوں نے وابڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ سابق رکن اسمبلی واجد ڈوگر کی قیادت میں مظاہرین نے وابڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ واجد ڈوگر یہ کہتے ہیں کہ رات بھر بجلی بند رہی اور متعدد افسران کو شکایتی کالز بھی کی گئیں، تاہم کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے پورے علاقے کا جینا محال کر دیا ہے۔ احتجاجی رہنما نے خبردار کیا کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے AI ویژن 2029 کے تحت مصنوعی ذہانت کو مختلف شعبوں میں متعارف کرانے کے اقدامات جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں مشیر وزیراعلیٰ بلائے AI اور خصوصی اقدامات علی ڈار نے وزیر کھیل و توانائی فیصل ایوب کھوکھر سے ملاقات کی۔ لاہور میں ہونے والی ملاقات کے دوران آفس آف AI اور محکمہ سپورٹس پنجاب کے درمیان مشترکہ اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر وزیراعلیٰ برائے AI علی ڈار نے کہا کہ نوجوان پنجاب کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں اور AI اور کھیلوں کا امتزاج انہیں عالمی مواقع فراہم کرے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ
محکمہ کھیل کے ساتھ مل کر اسپورٹس سیکٹر میں مصنوعی ذہانت کے مؤثر انضمام پر کام کیا جا رہا ہے، جس سے ادارے کی استعداد، شفافیت اور سروس ڈیلیوری میں بہتری آئے گی۔ علی ڈار کے مطابق اے آئی کے ذریعے کھلاڑیوں کی ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن، کارکردگی کے تجزیے اور تربیتی نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، جبکہ کھیلوں کے شعبے کو ڈیٹا پر مبنی اور عالمی معیار سے ہم آہنگ بنانے کے لیے بھی عملی اقدامات جاری ہیں۔ بہاول نگر کے علاقے چشتیہ میں کنویں میں اترنے کے بعد دم گھٹنے سے 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ مرنے والوں میں 2 بھائی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق تینوں افراد کنویں میں گری بکری کو بچانے کے لیے ایک ایک کر کے اترے۔ جاں بحق افراد کی عمریں 19 سے 24 سال کے درمیان ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے تینوں نوجوانوں کی لاشوں کو کنویں سے نکال لیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں، صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن بورڈ کا 146واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں نئی مالی سال کے بجٹ سمیت متعدد اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ پیسک ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں 15 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن مبین الہی نے ایجنڈا آئٹمز پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں نئے مالی سال کے لیے 14,285 ارب روپے کے بجٹ تخمینوں کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ منڈی بہاؤالدین کے ریوائز PC1 صنعتی پلاٹس کی بکنگ ریٹس اور پیسک ہاؤس میں ہینڈی کرافٹ شاپ کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی۔ ریٹائرڈ ملازمین کے میڈیکل الاؤنس کے اضافے اور پینشن فنڈ میں 40 کروڑ روپے کی شراکت کی منظوری بھی اجلاس کا حصہ رہی۔ اجلاس میں ملازمین کے لیے وزیراعظم کے اپنا گھر پروگرام کے تحت ہاؤسنگ اسکیم کی منظوری دی گئی، جبکہ بورڈ ممبران کے اعزازیے میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بلا سود قرضوں کی اسکیموں نے معاشی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب حکومت صنعتی ترقی اور ایکسپورٹ پروموشن کے بڑے پروگرام پر کام کر رہی ہے، جس کے تحت 300 ارب روپے کے آسان قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ اس پروگرام کا آغاز رواں سال اکتوبر میں متوقع ہے، جس کے تحت مختلف کیٹیگریز میں بلا سود اور کم شرائط سود پر اربوں روپے کے قرضے دستیاب ہوں گے۔ فیصل آباد کے تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے بوٹا چوک میں 15 سالہ حافظ قرآن اور نجی مدرسے کے طالب علم شعیب کے قتل کیس میں پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے مدرسے کے استاد رفاقت علی سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ گمشدگی کی رپورٹ کے بعد درج کیا گیا، جس پر CPO کی ہدایت پر خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق گرفتار ملزمان میں مبینہ طور پر ذاتی رنجش اور دیگر وجوہات سامنے آئی ہیں، تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ شواہد اور ٹیکنیکل معلومات کی بنیاد پر ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور لاش برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ لاہور میں فیروز پور روڈ پر عرفہ کریم ٹاور کے سامنے اور کلمہ چوک کی جانب احتجاج کے باعث ٹریفک عارضی طور پر متاثر ہوئی ہے۔ اس سے قبل GT روڈ پر قائد اعظم انٹرچینج اور شوق چوک کے مقامات پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ CTO لاہور سعید عبدالرحیم شرازی کی ہدایت پر DSPs اور ٹریفک افسران موقع پر موجود ہیں اور مظاہرین سے مذاکرات جاری ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق شاہراہوں کو جلد از جلد کلیئر کر کے ٹریفک کی روانی بحال کرنے کے لیے اقدامات بھی جاری ہیں۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر متاثرہ راستوں کا رخ نہ کریں اور سفر سے قبل متبادل روٹس اختیار کریں۔ پنجاب بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا عمل جاری ہے۔ پنجاب پولیس کے مطابق اب تک 35,000 سے زائد افراد کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق لاہور سمیت صوبے بھر سے اب تک 35,719 غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈپورٹ کیا گیا۔ ان میں مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق مزید 72 افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں، جنہیں کارروائی کے بعد واپس بھیجا جائے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق ڈپورٹ کیے جانے والوں میں 14,000 سے زائد مرد، 7,138 خواتین اور 14,529 بچے شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ان افراد میں رہائشی ثبوت رکھنے والے، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد شامل تھے۔ IG پنجاب کے مطابق صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور غیر قانونی مقیم افراد کے انخلاء کے عمل کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں بین الاقوامی قوانین اور حکومتی پالیسی کے مطابق جاری ہیں۔
वज़ीर आला पंजाब लोकल रोड प्रोग्राम में महकमा तामीरात व मवासलात ने नुमाया पेशरफ्त की रिपोर्ट के तहत 75 दिनों में 1134 शाहराहों की तामीर मुकम्मल कर ली है। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि 30 जून तक 1000 शाहराहों की तामीर का हदफ मुकर्रर किया गया था। ताहम फील्ड फॉर्मेशन की कारकर्दगी के बायस 1134 शाहराहें मुकम्मल की गईं, जो हदफ से 134 ज़्यादा हैं। इजलास में सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, स्पेशल सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, चीफ इंजीनियर, एसएस और एक्सीज ने शिरकत की। सूबाई वजीर ने हदफ की बरवक्त तकमील पर अफसरान की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि इसी जज्बे और टीम वर्क के साथ फेज 2 के अहदाफ हासिल किए जाएं। उन्होंने हिदायत की कि अगले 10 रोज में लाइन मार्किंग और साइन बोर्ड्स की तनसीब मुकम्मल की जाए ताकि अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। सूबाई वजीर के मुताबिक हुकूमत का मकसद शहरियों को रिलीफ और जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी है। कसूर में थाना बी डिवीजन के इलाके में मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर नामालूम मुलजिम ने तेजाब फेंक दिया, जिससे वो शदीद झुलस गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक वाकया मंगल मंडी के करीब पेश आया, जहां 26 साल वकास अहमद वल्द गुलाम कादिर मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि अचानक एक नामालूम शख्स ने उस पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और बाद अज़ा से DHQ अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक मुतासरा नौजवान के सर, हाथों और टांगों पर फर्स्ट डिग्री बर्न आए हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मुलजिम की तलाश भी जारी है। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने डिस्ट्रिक्ट जुना पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज और नए और जदीद IT रूम का इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल के मुताबिक ये IT लैब 1.5 मिलियन रुपए की लागत से तैयार की गई है। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने 24 असातिज़ा और 10 स्टाफ मेंबरान में प्रमोशन लेटर्स भी तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तकरीब का मकसद बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा की हौसला अफजाई और तालीमी मयार में बेहतरी लाना है। उन्होंने मजीद कहा कि जदीद तालीमी सहूलियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग और असातिज़ा की हौसला अफजाई मयारी तालीम की बुनियाद हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रासानी, शॉप रॉबरी और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस एक मुनज़्ज़म गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान असलहे के जोर पर शहरियों से लूटमार, दुकानों में डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के 10 चोरी शुदा मोटरसाइकिल, कीमती मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद कर ली है। पुलिस का ये कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद रेहान, अल्लाह दत्ता, हसनैन अली, अकबर अली, अली अकबर और अदील शामिल हैं। DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक के मुताबिक मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और एमुनीशन भी बरामद किया गया। DIG इस्लामाबाद ने कहा है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रुख करेंगे चित्राल का और बताएं कि चित्राल में मुसलसल बारिशों के बाइस अपर और लोअर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे मकानात, फसलें और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। गुज़िश्ता शाम से होने वाली बारिशों के बाद अपर और लोअर चित्राल में सैलाबी रेलों ने मुतअद्दिद इलाकों को मुतासर किया है। मुख्तलिफ मकामात पर घरों, मसाजिद, खड़ी फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा, जबकि पीने के पानी और आबपाशी का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ। अपर चित्राल के इलाके यारखून शीश में आने वाले सैलाब से फसलें, बागात और रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि पानी की पाइपलाइनें तबाह होने के बायस मुकामी आबादी को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। इलाका मकीनों ने हुकूमत और मुतालिका इदारों से फौरी इमदादी कार्रवाइयों और पीने के पानी की फरहमी का मुतालबा किया है। दूसरी जानब खानपुर के नवाही इलाके चक 97P में घरेलू झगड़े के दौरान दामाद की फायरिंग से 7 जाँ बहक हो गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मुलजिम फरार है। रेस्क्यू तराई के मुताबिक झगड़े के दौरान दामाद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 50 साला खातून सरदार बीबी मौके पर जा बहक हो गईं। वाक़े के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया, जबकि सदर पुलिस ने इलाके का घेराव करके तफ्तीश शुरू कर दी है। रेस्क्यू टीम ने लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया। पुलिस वाक़े के मुहर्रिकात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है।
पत्तोकी थाना सदर की हुदूद में वाक़े नवाही गांव ठेंग में नामालूम अफराद ने फैज़ुर रहमान नामी शहरी को नर्सरी को निशाना बनाया है। मुतासरा शहरी के मुताबिक मुलजमान रात की तारीकी में नर्सरी में दाखिल हुए और तकरीबन 90 लाख रुपए मालियत के 3000 कीमती पौधे काट कर ज़ाया कर दिए, जबकि 100 से ज़ायद पौधे चोरी करके फरार हो गए। फैज़ुर रहमान का ये कहना है कि वो शाम के वक्त नर्सरी की देखभाल के बाद घर गया था, ताहम सुबह वापस आने पर मुकम्मल नुकसान का इल्म हुआ। मुतासरा शहरी ने थाना सदर पत्तोकी में तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाई है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का ये कहना है कि नामालूम मुलज़मान की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। सुतरा पंजाब के तहत करोड़ों रुपए माहाना फंड जारी होने के बावजूद मलिकवाल शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। सूरत हाल इस वक्त मजीद संगीन हो गई जब तहसील इंतजामिया के मरकजी दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर में ही सफाई के नाकिस इंतजाम सामने आए। दफ्तर के मुख्तलिफ हिस्सों में कूड़ा करकट के ढेर मौजूद हैं, जो न सिर्फ आने वाले साइलिन के लिए अजियत का बाइस हैं, बल्कि इंतजामी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान हैं। शहरी हलकों का ये कहना है कि जिन इदारों के जिम्मेदार शहर की सफाई निगरानी है, अगर उन्हीं के दफातर में सूरत हाल खराब हो तो बाकी शहर की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। महंगाई के बढ़ते असरात के बायस शहरियों के लिए इलाज मुआलजे के अखराजात एक बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं, जबकि हुकाम अद्वियात की फरोख्त से मुताल्लिक़ क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद का दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आम आदमी को सस्ता और मयारी इलाज मैसर आएगा? देखते हैं आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में महंगाई के बायस इलाज मुआवजा के अखराजात शहरियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर की फीस, तबी टेस्ट और अद्वियात की खरीदारी पर होने वाले अखराजात शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं, जबकि मुस्तकिल अद्वियात इस्तेमाल करने वाले मरीजों को ज्यादा मुश्किलात का सामना है। यकीन करें बस, लेकिन मेडिसिन का सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए तो बड़े मुश्किल है, मेडिसिन नहीं अवेल होती और बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक मेडिसिन है, दो है ही नहीं है, ठीक है। मजबूरन हमें फिर मार्केट से रजू करना पड़ता है और इधर आ जाएं तो यकीन करें जेब इजाजत नहीं देती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। शहरियों का कहना है कि बीमारी की सूरत में इलाज के अखराजात पूरे करना आसान नहीं रहा, खुसूसन ऐसे खानदान जिनके घरों में शुगर, ब्लड प्रेशर, कल्बी मसाइल या दीगर खतरनाक बीमारियों में मुब्तला मरीज मौजूद हैं। इनके लिए हर माह अद्वियात की खरीदारी नामुमकिन हो चुकी है। दूसरी जानिब अद्वियात के महफूज और कानूनी इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए महकमा सेहत और फैसलाबाद पुलिस भी मुतहरक हैं। CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन की हिदायत पर ममनुआ और गैर कानूनी अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग का अमल भी जारी रखा गया है। महकमा हेल्थ और पुलिस का बहुत अच्छा इक़दाम है कि ये जो ममनुआ अद्वियात है इनकी रोकथाम की जा रही है, सख्त एक्शन लिया जा रहा है, इससे नौजवान नस्ल का बहुत फायदा है। हकाम का कहना है कि हसास नवियत की अद्वियात सिर्फ मुस्तनिद डॉक्टर के नुस्खे पर ही फरोख्त की जा सकती हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैसलाबाद में एक तरफ शहरी इलाज मुआवजा के बढ़ते हुए अखराजात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मुतल्लिका इदारे अद्वियात की कानूनी और महफूज फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए बात करें हजरत बाबा मिठू शाह वली के सालाना उर्स के मौके पर रिवायती खेलों का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें कबड्डी के दंगल ने समा बांध दिया। लाहौर और कसूर की टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें कसूर की टीम ने फतह अपने नाम कर ली। हजरत अब्दुल्ला शाह बुखारी और मारूफ बाबा मिठू शाह वली के सालाना उर्स के मौके पर रिवायती खेल कबड्डी के शानदार मुकाबलों का एहतमाम किया गया। मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मैदान तमाशाइयों से कचाकच भर गया। कबड्डी के इस दंगल में लाहौर और कसूर की टीमें आमने सामने आई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन महारत का मुजाहरा किया और शायकीन से खूब दाद वसूल की। हर शानदार दाव पेच पर ढोल की थाप गूंजती रही और तमाशाइयों ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। तकरीब में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू मियां साद वसीम शेख, MNA और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ पंजाबो MPA हल्का PP 176 चौधरी मोहम्मद अयास खान ने मौजूदीन इलाका के हमरा बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
انتہائی सनसनीखेज मुकाबले के बाद कसूर की टीम ने मैदान मार लिया। इख्तिताम पर जीतने वाली टीम और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। रुख करें मुल्तान का और बताएं कि मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग की मुबैना मुनज़्ज़म कोशिश को नाकाम बना दिया है। कार्रवाई के दौरान 2 ख़वातीन मुसाफिर अकीला बतूल और निमरा एहसन जो मुल्तान की रिहायशी हैं उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रही थीं, उनको ऑफलोड कर दिया गया। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान दोनों मुसाफिरों को मशकूक करार देकर मजीद वेरिफिकेशन के लिए काउंटर पर रेफर किया गया। जांच पड़ताल के दौरान दोनों खवातीन अपने क़याम, माली वसाइल और सफरी अखराजात के बारे में तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकीं। मजीद तफ्तीश में ये भी सामने आया कि अकीला बतूल ने अपने शोहर के पासपोर्ट और अकामा, जबकि निमरा एहसन ने अपने भाई के अकामा की डिजिटल कॉपियाँ पेश की जो बाद-ए-अज़ा एडिट शुदा और काबिल तरमीम पाई गईं। तहकीकात के दौरान दोनों खवातीन के मोबाइल फ़ोन से मुश्तबा ट्रैवल एजेंट से राबतों के शवाहिद भी बरामद हुए। FIA इमिग्रेशन मुल्तान ने दोनों मुसाफिरों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल AHTC मुल्तान के हवाले कर दिया है, जबकि मजीद तफ्तीश भी जारी है। मुल्तान के इलाके राजा राम के करीब 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में अफसोसनाक हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक हादसे में 70 साला गुलाम हुसैन मौके पर ही जा बहक हो गए। हादसे के नतीजे में 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। मरकजी मुस्लिम लीग और रेस्क्यू 1122 की ज़ेर-एहतमाम मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए और कारकुनान की तरबियत के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करें गुजरावाले से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी। हाजी ज़फ़रुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त गुजरावाला में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से यहाँ पर मुमकिना शराबी सूरत हाल से निपटने और कारकुनों की तरबियत के हवाले से मॉक एक्सरसाइज का यहाँ पर एहतमाम किया गया। इस वक्त तमाम जो इनके कारकुन हैं यहाँ पर मॉक एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी मरकजी क़यादत मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि इस जो आज मॉक एक्सरसाइज का इसका असल मकसद क्या है और क्या करना है। सर आप बताइएगा कि मुमकिना शराबी सूरत से निपटने के लिए आज मॉक एक्सरसाइज की जा रही है मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से, तो क्या कहेंगे? जी, हमारा ज़ैली इदारा मुस्लिम रेस्क्यू मिशन जो है इस वक्त मुतहर्रिक है। पाकिस्तान भर में हम नौजवानों को ट्रेन कर रहे हैं, लोगों को हम आगाह कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन दे रहे हैं। अगर सैलाबी कैफियत बन जाए, आपने खुद कैसे बचना है, अपने प्यारों को कैसे बचाना है और अगर रेस्क्यू करने की ज़रूरत पेश आ जाए तो आप रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनके हवाले से हम आगाही दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर हमने सिलसिला शुरू किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे बोट्स चल रही हैं, ये भी हमारा इस एक्टिविटी का हिस्सा है। हमारे जो ट्रेनर्स हैं ये उनका रिफ्रेशर कोर्स भी हो रहा है। तो ये जो इस वक्त मुमकिना सैलाब के खतरात हैं उस हवाले से हमारी ये तैयारियां हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला मुल्क भर में हज़ारों अफराद की टीम है जो हम तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ वाटर रेस्क्यू नहीं है बल्कि इंशाअल्लाह ताला अगर कहीं आग लग जाए वहाँ पे कैसे रेस्क्यू करना है। जिस तरह कल लाहौर के अंदर एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई और बच्चे यानी कितने बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारी टीम ने जाके काम किया। इस तरह चिल्लास के अंदर इस वक्त जो सैलाबी कैफियत है वहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है। बलूचिस्तान में जो जलजला आया बारखान में वहाँ पे टीम काम कर रही है। तो ये तमाम एक्टिविटीज, इसका ये बुनियादी तौर पे जो रेस्क्यू करने का मकसद है वो यहाँ से पूरा हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने मरकजी क़यादत की बात नहीं, उनका कहना है कि बिल्कुल शहरियों की जानो माल हिफाजत और अमन मान को कायम रखने के लिए हमेशा मरकजी मुस्लिम लीग ने अपना अहम किरदार अदा किया है और ये जो आज सैलाबी सूरत से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज है ये भी उसका एक हिस्सा है। जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन क्राइम फ्री पंजाब के तहत इंसाफ की फराहमी का सिलसिला जारी है। ननकाना साहब की अदालत ने थाना वार्ड ब्रिटेन में दर्ज कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। जुर्म साबित होने पर मुजरिमान को सजाए मौत और उम्र कैद समेत जुर्माने की सजाएं सुनाई गईं। कत्ल के मुकदमे का फैसला एडिशनल सेशन जज ननकाना साहब मोहतरमा शुमाला याकूब सिद्धू ने सुनाया। अदालत ने मुजरिम मुश्ताक को 2 मरतबा सजाए मौत और 10 लाख रुपए हर्जाने की सजा, जबकि मुजरिमा सुहरा बीबी को उम्र कैद और 3 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई। ये मुकदमा 3 साल कबल थाना वार्ड ब्रिटेन के नवाही गांव मुस्तफाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का था, जहां इकरा बीबी को टोके के वार करके कत्ल कर दिया गया था। मकतूला 8 माह की हामला थी। पुलिस के मुताबिक थाना वार्ड ब्रिटेन ने दोनों मुलजिमान को 2023 में गिरफ्तार किया था। DPO ननकाना अरसलान जाहिद का कहना है कि केस की शफाफ तफ्तीश और मजबूत पैरवी में इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और लीगल टीमों की कारकर्दगी काबिल तहसीन है, जिसके बाइस अदालत से मुजरिमान को करार वाकई सजा मिली है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर महकमा जंगली हयात ने पंजाब के तमाम चिड़ियाघरों और वाइल्ड लाइफ पार्क्स में जानवरों और परिंदों को शदीद गर्मी से महफूज रखने के लिए समर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। डायरेक्टोरेट जनरल वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स पंजाब की जानिब से जारी मरासले में हिदायत की गई कि हर पिंजरे और बाड़े में 24 घंटे साफ पानी की फराहमी, खुराक और पानी को सायादार मकामात पर रखने, मुनासिब शेड्स, पंखों, एयर कूलर्स, बर्फ और वाटर स्प्रिंकलर्स का इंतजाम यकीनी बनाया जाए। मरासले के मुताबिक बंदरों, रीछों, शेरों समेत गर्मी से ज़्यादा मुतासर होने वाले जानवरों के लिए खुसूसी हिफाजती इक़दामात किए जाएँ, जबकि ज़रूरत के मुताबिक नहाने के तालाब, जानवरों की ओन की तराश खराश, ग्लूकोज, विटामिन सी और दीगर एंटी स्ट्रेसर्स की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। समर गाइडलाइंस पर तमाम वाइल्ड लाइफ पार्क्स और चिड़ियाघरों के इंचार्जेस को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई। दूसरी जानब लाहौर सफारी पार्क में ज़राफ़ों को गर्मी से बचाने के लिए आइस फ्रूट पॉप्स की फराहमी शुरू कर दी गई है, जिससे जानवरों की माहिरीन और वेटरनरी डॉक्टर्स ने जानवरों की सेहत, जिस्मानी ठंडक और जहनी सरगर्मी बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दाम करार दिया है। आगे बढ़ते हुए बात करें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान रेलवे अकेडमी के वफ़द ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पाकिस्तान रेलवे अकेडमी के अफसरान के वफ़द का खैर मकदम किया। वफ़द की क़यादत डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे अकेडमी वाल्टन मोहम्मद हनीफ गुल ने की। इस मौके पर डीजी रेलवे अकेडमी ने गवर्नर पंजाब को दौरे के मकासद से आगाह किया और पाकिस्तान रेलवे की बेहतरी के लिए जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने रेलवे की मुल्की, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत पर भी रोशनी डाली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे का सफ़र महफूज, आरामदेह और काबिल एतमाद है, जबकि मौजूदा निज़ाम में मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। उनका ये कहना था कि रेलवे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है और आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब ने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत को रेलवे के शोबे की तरक्की के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम करने चाहिए। मुलाकात के अख्ताम पर डीजी रेलवे अकेडमी ने गवर्नर पंजाब को अकेडमी के दौरे की दावत दी, जबकि वफ़द को तारीखी गवर्नर हाउस लाहौर का तफसीली दौरा भी कराया गया। 1 जुलाई तहसील कसूर से ज़िला का सफ़र तारीख का सुनहरी बाब है। 50 बरस कबल 1 जुलाई 1976 को कसूर को ज़िला का दर्जा दिया गया। आज कसूर ज़िला बनने की गोल्डन जुबली मना रहा है। सूफिया, सकाफत, तमद्दुन और अमन के सफ़ीर हज़रत बाबा बुल्ले शाह की धरती के शहर पर मोहम्मद नसीर की रिपोर्ट देखेंगे। अमन के सफीर, दिलों को इंसानियत के नाम पर जोड़ने वाले सूफिया की ये धरती कसूर है, जो कि कसर से निकला लफ्ज है, जिसे दरवाज़ों या महल्लात का शहर कहा जाता है। 1 जुलाई 1976 से शुरू होने वाला ये सफर आज 50 बरस मुकम्मल कर चुका। इन बरसों में कसूर ने तरक्की, चैलेंजेस और कामयाबियों के कई अदवार देखे, मगर अपनी तहजीबी शनाख्त और सकाफती विरसे को हमेशा बरकरार रखा। महल्लात का शहर कहा जाता है। कसूर 1584 मुरबा में रकबे पर आबाद है और 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है। इस शहर ने बड़ी नामवर तरीकी हस्तियाँ पैदा की हैं। उनमें से एक बड़ा नाम बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। आज इस शहर कसूर को बुल्ले शाह की धरती कहा जाता है। कसूर के नाम से अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का तस्वर जहन में उभरता है, जिनका पैगाम मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानी दोस्ती आज भी दिलों को जोड़ती है। एक तारीखी शहर है और आज इसके 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं, इसको ज़िला बने हुए। इस हवाले से बुल्ले शाह भी संगत उन 50 साल गोल्डन जुबली मना रही है और ये शहर हमेशा इल्मी अदबी तहरीकों का मरकज़ रहा है। हज़रत गुलाम मुर्तज़ा कसूरी जो है, उनके शागिर्दों की तादाद पिछली 18वीं सदी में, 17वीं सदी में हज़ारों में थी और फिर गुलाम मुर्तज़ा कसूरी और गुलाम महीउद्दीन कसूरी एक जानदार रवायत थे और मोहब्बत का ऐसा और दीन और तसव्वुफ़ का ऐसी यहाँ बुनियादें रखी। कसूर सदियों पर मुहित तारीख का अमीन है। कदीम फसलें, तारीखी दरवाजे, पुराने बाजार और रवायती गलियां आज भी इस शहर के माजी की दास्तान सुनाती हैं। यहाँ की सकाफत में पंजाब की खुशबू, लोक मौसीकी, रवायती खाने और मेले ठेलों की रौनक नुमायां रहती है। ज़राअत हो या चमड़े साजी की सनत, कसूर की बैनुल अक़वामी पहचान है। भारतीय सरहद पर गंडा सिंह बॉर्डर पर परचम कुशाई के जज्बों को उभारने वाली पुरवकार परेड इसका रोशन चेहरा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीर, 5 न्यूज़ कसूर। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद अवाम को उम्मीद थी कि ट्रांसपोर्ट अखराजात कम होने से अशिया ख़ुरनोश समेत दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी सस्ती हो जाएंगी, मगर ज़िला मटियारी, हाला, भिटशा और गिरदनवाह की मार्केटों में सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है, जहाँ बेशतर दुकानदार अब भी पुराने निर्खों पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं। मजीद देखेंगे मटियारी से नुमाइंदा 5 न्यूज़ अली रज़ा मीरजत की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान के बावजूद ज़िले मटियारी में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशियाओं की कीमतों में कमी न आ सकी।
शहरियों का कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां और दीगर एशिया आज भी महंगे दामों में फरोख्त हो रही हैं, जिससे आम आदमी को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा। महंगाई जो है बड़ी अरूज पे है। और अभी जो मैं आया हूँ टमाटर लेने आया हूँ, टमाटर 400 रुपये किलो है, आलू 70 रुपये किलो है और प्याज जो है वो 120 रुपये किलो है। अब इतनी बड़ी महंगाई हो गई है, अब इस महंगाई के दौर में हम चलें तो कैसे चले? हमारी दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपये दिहाड़ी है और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है और जो आवाम को रिलीफ मिलता है तो 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये उसको नीचे किया जाता है और जब बढ़ाया जाता है तो वो 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये बढ़ाया जाता है। जैसे अब सब्जी की कीमतें, टमाटर आप देख लें अभी जो इस टाइम कीमतें आसमान को छू रही है और जो डेली खाने पीने की चीज़ें जैसे ऑयल वगैरह हो गया, आटा वगैरह हो गया, इनके रेट भी जो है वो कम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा रेट। सब्जी है, आटा है, चीनी है, पत्ती है, ऑयल है, ये बहुत महंगे हैं। तेल तो उतर चुका है, ये चीज़ें नीचे जुल्म है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब को अर्ज है, डिप्टी कमिश्नर को अर्ज है हमारा इन चीज़ों पे आगे कंट्रोल कराए। शहरियों ने जिले इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर मटियारी, असिस्टेंट कमिश्नर हाला, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस से मुतालबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले व्यापारी दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ज़्यादा कीमत वसूल करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाए और सरकारी नरखों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए ताकि गरीब और दिहाड़ीदार तबके को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ अली रज़ा मीर जैद, 5 न्यूज़, मटियारी। आगे बढ़ते हुए बात करें मीरपुर खास मरकजी तंजीम ताजरान का 7वां यौम तासीस के मौके पर एक पुररौनक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सियासी समाजी शख्सियत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कोऑर्डिनेटर हाजी मोहम्मद अली ने खुसूसी शिरकत की। यौम तासीस की पुररौनक तकरीब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कोऑर्डिनेटर हाजी मोहम्मद अली, हाफिज़ सादिक सईदी फैसल और दीगर का ये कहना था कि मरकजी तंजीम ताजरान का एक पौधा आश्तनावर दरख्त बन चुका है। तंजीम की बुनियाद ताजरों के मसाइल के साथ साथ अवामी मसाइल को उजागर करना और उनके हल के लिए जद्दोजहद जारी रखना है, जिसके लिए मरकजी तंजीम ताजरान मसाइल के हल के लिए सबके साथ मिलकर जद्दोजहद करती है। इस मौके पर मरकजी तंजीम ताजरान सदर कामरान मीमन, जनरल सेक्रेटरी मलिक अब्दुल खालिक ने कहा कि मरकजी तंजीम ताजरान काशिफ चौधरी की क़यादत में आज पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, बड़े बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों तक फैल चुकी है। उन्होंने कहा कि मरकजी तंजीम ताजरान अपनी जद्दोजहद को जारी रखेगी। इस मौके पर मरकजी तंजीम ताजरान के 7वें यौम तासीस का केक काटा गया। तकरीब में तमाम मार्केट के सदूर और दीगर भी मौजूद थे। पिंड दादन खान के करीब दरिया जहलम में पानी के बहाव में इजाफा हो गया, जिसके बायस ट्रसफल हिराज टाउन स्ट्रीम के इलाकों में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। जिला इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। रसूल बिराज डाउन स्ट्रीम, कोट उमरचक, निज़ाम, LCI बेला, पत्थर नदी और कोट कच्चा समेत मुतादिद इलाकों में पानी की मिकदार बढ़ने से दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कई मकामात पर दरिया का पानी किनारों से बाहर निकल आया, जबकि नशीबी इलाकों और दरियाई किनारे आबाद बस्तियों के करीब पानी पहुँचने लगा है। बाज़ जगहों पर पानी के बाइस ज़मीनों के कटाव की भी इत्तलात हैं। मौकामी और ज़िला इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी करते हुए दरिया में नहाने और मवेशी ले जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू 1122 समेत तमाम मुतालिका इदारों को भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं।